Hello everyone, this is Nisha Chauhan and you're watching Scienceaholic. In today's video, we will be discussing about the most important NCERT solution of the chapter number 2, that is matter around a sphere. And this chapter is from class 9th. In last video, we have discussed about the MCQs of this chapter, and if you have not seen that video, the link I have given in the description box below, you can see from there. So without wasting time, let's jump into the topic. Chapter number 2 is matter around a sphere. Question number 1. Which separation techniques will you apply for the separation of the following? Now we have to tell the techniques for these. A. Sodium chloride from its solution in water. Now हमें वाटर की सोल्यूशन में जो हमने सोडियम क्लोराइड ऐड किया है, दैट इज से टेबल सॉल्ट कैसे हम रिकवर करेंगे. So for that we need to tell the technique. Now the technique is evaporation. Evaporation is a technique to recover sodium chloride back from the solution. So what is evaporation? Water will evaporate, leaving behind the sodium chloride. This picture you might have seen in your book. This is the beaker और जिसमें solution रखा हुआ है, mixture रखा हुआ है water and salt का. So इसे recover करने के लिए we need to heat up. जब इसे हीट करेंगे तो वाटर इसका स्टीम के थ्रू इवेपोरेट हो जाएगा एंड नीचे रेसिड्यू होंगे सॉल्ट के. सो दैट वे वी कैन जस्ट रिकवर. सो दिस इज कॉल्ड एवेपोरेशन. लेट्स सी बी अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड. नाउ दिस इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, अगेन टेबल सॉल्ट मिक्स किया है अमोनियम क्लोराइड में. उसमें से हमें अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करना है. Now the melting point of sodium chloride and ammonium chlorides are different. दोनों का different है. melting point ammonium chloride का कम है and sodium chloride का ज़्यादा है. So दोनों का मिक्सचर हमने एक चाइना डिश में रखा है. This is the image and this image you might have seen for the sublimation, right? sublimation टेक्निक के लिए ये वाला हम यूज़ करते हैं लैब्स में, जिसमें एक चाइना डिश में हम मिक्सचर रखते हैं, जो भी मिक्सचर हमको सेपरेट करना होता है, एंड उसके ऊपर उल्टा फनल रखते हैं, राइट? उल्टा फनल रखने के बाद यहाँ पर एक कॉटन का प्लग लगाया जाता है कि जो भी हमारा कंटेंट है वो इवेपोरेट ना हो, और नीचे से उसे हीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बर्नर. सो आफ्टर सम टाइम जब हीट होता है तो जिसका टेम्परेचर कम होता है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है. मेल्ट होके वो यहाँ पर स्टिक हो जाता है इसके वॉल्स पे, फनल के वॉल्स पे, एंड जो नीचे रहता है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो मेल्ट नहीं होता. सो दैट इज़ सोडियम क्लोराइड एंड दैट इज़ सॉल्ट. So this way you can easily separate. यहाँ पर आपको अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा at the wall of funnel and चाइना डिश में आपको सॉल्ट मिल जाएगा. This way you can easily separate. So this is called sublimation. Sublimation, ammonium chloride will be collected as sublimate, and जो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड मिलेगा that is called sublimate with the help of sublimation technique. See small pieces of metal in the engine oil of a car. Now engine oil of a car में small pieces of metal easily है, हम easily separate कर सकते हैं with the help of filtration. Pieces of metal can be separated by filtration. So this is the picture of filtration technique, जिसमें एक funnel होता है, उसके अंदर हम filter paper लगाते हैं and उसके अंदर वो solution pour करते हैं जिस solution को हमें filter करना होता है. So इस filter paper के through ये जो भी engine oil होगा वो नीचे filtrate के form में आ जाएगा, और जो metal pieces हैं वो यहाँ पर filter paper में residue के form में collect हो जाएंगे. So this way you can easily separate. So this is called filtration. Let's see next technique. D. Different pigments from an extract of flower petals. Now this is about related to color, and you know that color से जब भी आपका connection होता है that is chromatography. Chroma means color. सो कलर का सेपरेशन होता है, पिगमेंट डिफरेंट टाइप डिफरेंट कलर के पिगमेंट सेपरेट करने होते हैं, तो एक ही टेक्निक होती है दैट इज क्रोमेटोग्राफी. पिगमेंट्स कलर्ड components from the extract of flower plants can be separated by chromatography, and this picture you might have seen in your books. बुक में दिया है. दिस इज़ द ग्लास जार, और ये केमिस्ट्री लैब में भी आप देख सकते हैं. वहाँ पर आप एक ग्लास जार रखा होगा, उसमें यहाँ पे क्लिप के थ्रू एक पेपर हैंग होता है, एंड उस पेपर को उस जार के अंदर रखते हैं, एंड दिस इज़ द सॉल्वेंट. एक सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर मिक्सचर होता है कंपोनेंट्स का, डिफरेंट टाइप की कंपोनेंट्स का, एंड वो कलर कंपोनेंट का मिक्सचर इसको रन करते हैं तो ये पेपर के ऊपर डिफरेंट लेवल पे जाकर कलेक्ट हो जाता है. सो दिस वे यू कैन ईजिली recover the different pigments with the help of chromatography.
लेट्स सी ई बटर फ्रॉम कर्ड. सिंपल है, आपने अपने घर पे देखा ही होगा, जब भी हम कर्ड बनाते हैं उसमें से बटर निकालना होता है. तो द प्रोसेस ऑफ बटर मिल्क कैसे बनाया जाता है, उसको बहुत प्रेशर के साथ रोटेट करना पड़ता है. उस मिक्सचर को मिक्सर में आप करते हैं ना, उसको कर्ड डालते हैं और फिर उसको रोटेट करते हैं, तो उसमें नीचे बटर मिल्क हो जाता है, ऊपर बटर कलेक्ट हो जाता है. सो दिस वे यू कैन ईजिली separate. Butter will get separated upon centrifugation and that process is called centrifugation. घर पे हम centrifugation नहीं बोलते, but the process in chemical language is called centrifugation. Centrifugation एंड ये सेंट्रीफ्यूगेशन का सेटअप इस तरह का होता है, एक बड़ा सा टब जैसा होता है, उसमें बहुत सारे टेस्ट ट्यूब्स रखे होते हैं जिसमें हम मिक्सचर लेते हैं, जिसको हमको सेपरेट करना होता है और उसको बहुत प्रेशर के साथ रोटेट करते हैं. आफ्टर सम टाइम उसमें जो भी रेसिड्यू होता है वो नीचे मिल्क और देखो ऊपर क्रीम इस तरह से सेपरेट हो जाता है. सो दिस इज़ अबाउट सेंट्रीफ्यूगेशन. लेट्स सी ऑयल फ्रॉम वाटर. सो ऑयल फ्रॉम वाटर इट्स वेरी इजी टेक्निक. सेपरेटिंग फनल यूज़ करके ऑयल एंड वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेटेड बाय द यूज़ ऑफ सेपरेटिंग फनल. टी लीव्स फ्रॉम अ टी, इट्स वेरी सिंपल. फिल्ट्रेशन, डेली हम घर पे जब टी बनाते हैं तो टी बनाने के बाद जो नीचे आता है दैट इज़ फिल्ट्रेट, एंड जो सीव में जो स्ट्रेनर में जो बचता है दैट इज़ टी लीव्स, एंड दैट इज़ upon filtration through a sieve, tea leaves will be collected on the sieve. sieve के ऊपर collect हो जाती है. This way you can easily filtrate. H, iron pins from sand, magnetic separation. So it's very simple and हम ये बहुत interesting है कि जब कोई भी चीज़ आयरन की मेटल की चीज़ जो मैग्नेटिक के थ्रू अट्रैक्ट होती है वो आपको सेपरेट करनी होती है, उसके लिए सिंपल हम मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ मैग्नेटिक सेपरेशन. अ मैग्नेट will attract iron pins and not sand particles. So this way magnet and वो easily separate हो जाएगा. Let's see wheat grains from husk. The technique is called winnowing or sedimentation. Wheat grains from husk can be separated with the help of sieve. This is the technique that फार्मर्स फार्मर इस टेक्निक को यूज़ करते हैं वीट को अलग करने के लिए हस्क से. सो एक एयर का प्रेशर होता है, एयर के प्रेशर से हस्क अलग सेपरेट हो जाता है एंड नीचे वीट ग्रेन्स कलेक्ट हो जाते हैं. सो दिस वे वी कैन ईजिली सेपरेट. नाउ फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. It's a technique. With the help of this, we can easily separate fine mud particles. Mud particles will settle down. अब वाटर में आप मड को मिक्स करिए, विगरसली मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए उसको सेटल डाउन करने के लिए आप जब रख देंगे तो ऊपर वाटर नीचे मड पार्टिकल्स होंगे, तो ऊपर का जो वाटर है उसको डिकैंट करके आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द स्टेप यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी. यूज द वर्ड सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सल्यूट, dissolve, soluble, insoluble, filtrate and residue. Take a cup of water in a container as a solvent and heat it. So this the process. जब हम घर पे टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो पूरा चाय बनाने की प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन करी है विद द हेल्प ऑफ दीज वोकैबुलरी, सोल्यूशन, सॉल्वेंट्स, सल्यूट, डिजॉल्व. वो यूज़ करेंगे किसको क्या यूज़ करते हैं, किसको क्या बोलते हैं. टेक अ कप ऑफ वाटर इन अ कंटेनर एज अ सॉल्वेंट. हमने वाटर लिया एज अ सॉल्वेंट और उसको बॉईल करने के लिए हमने रख दिया. उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड शुगर. एंड जो शुगर होता है दैट इज़ अ सल्यूट. वो सल्यूट होता है बिकॉज वो वाटर में मिक्स होता है तो वो सल्यूट होता है, और जिसके अंदर मिक्स होता है वो सॉल्वेंट होता है. हीट. नाउ हीट इट टिल ऑल शुगर डिजॉल्व. जब तक पूरी शुगर डिजॉल्व नहीं होती तब तक उसे हम हीट करते हैं और एक प्रॉपर सोल्यूशन तैयार करते हैं. यू गेट सोल्यूशन ऑफ वाटर इन शुगर. उसके बाद आपको एक सोल्यूशन मिलता है वाटर इन शुगर का. आफ्टर दैट वॉट यू डू, शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर कम्प्लीटली. आपको पता है शुगर की सोल्यूबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वाटर में ईजिली मिक्स हो जाती है. लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप. स्टेप 5, ऐड हाफ अ टी स्पून ऑफ टी लीव्स एंड इट इज़ इंसॉल्युबल इन वाटर. जब आप हाफ टी स्पून ऐड करते हैं तो वो इंसॉल्युबल होती है वाटर में. बॉयल द कंटेंट, ऐड मिल्क विच इज़ ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर एंड बॉयल अगेन. आप उस कंटेंट को फिर बॉईल करते हैं, फिर उसमें बॉईल करने के बाद एट लास्ट यू विल ऐड मिल्क. जब उसमें मिल्क ऐड करते हैं और फिर बॉईल करते हैं तो देन यू आर गेटिंग टी. Filter the tea with the help of strainer. Now you will filter the tea with the help of strainer. The tea collected in cup is a filtrate and the tea leaves collected on the strainer is residue. So this way you can easily understand what is called solution, solute, filter, residue. सब आपको इसके easily समझ में आएगा.
Question number 3, it's very important as exam point of view. Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperature and collected the data as given below. Results are given in the following table as grams of substance dissolved in 100 grams of water to form a saturated solution. Now प्रज्ञा ने 100 grams of वाटर में उस डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिक्स करके एक डेटा रेडी किया है एंड वो डेटा हमको ऑब्जर्व करके कुछ आंसर्स हमको फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 grams of water at 313 Kelvin. Now the temperature is 313 Kelvin and इसमें हमको 50 grams of potassium nitrate में मास कितना मास लगेगा, what would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams. कितना हमको मास पोटेशियम नाइट्रेट लगेगा जब हम 50 grams of water यूज़ करेंगे, टेम्परेचर 313 होगा. बी क्वेश्चन, Pragya makes a saturated solution of potassium chloride in water at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. उसने saturated solution potassium chloride का बनाया, टेम्परेचर 350 यूज़ किया एंड उस सोल्यूशन को उसने कूल किया एट रूम टेम्परेचर. सो उसके बाद उसका क्या ऑब्जर्वेशन होगा हमको वो भी एक्सप्लेन करना है. सी, फाइंड द सोल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट. सारे जितने भी सॉल्ट यूज़ किए हैं, सब्सटेंसेस यूज़ किए हैं, वी नीड टू फाइंड द सोल्युबिलिटी ऑल्सो एट द टेम्परेचर 293 Kelvin. Which salt has the high solubility at this temperature? Now we have to tell which salt, कौन सा salt है इस temperature पे उसकी solubility सबसे ज़्यादा है, वो हमको explain करनी है. D, what is the effect of change of temperature on the solubility of salt? Solubility of salt पे temperature का क्या effect पड़ेगा ये भी हमें explain करना है. So this is the table that we have to understand. Substance dissolve. These are the substances that dissolve in 100 grams of water at temperature. These are the temperature they have given: 283, 293 Kelvin, 313 Kelvin, 333 Kelvin, 353 Kelvin. These are the temperature and these all are the solubility of the different substance at different temperature. So first question का आंसर होगा mass of KNO3 to produce a saturated solution of KNO3 in 100 grams. 100 grams में हमने mass of KNO3 कितना यूज़ किया था, वो यहाँ पर 62 grams पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होता है, तो हमने टेम्परेचर 313 Kelvin पर 62 grams यूज़ किया था 100 grams ऑफ वाटर में. हमें यहाँ पे 50 grams ऑफ वाटर में निकालना है कि कितना हमें उसका मास लगेगा, पोटेशियम नाइट्रेट का कितना मास हम यूज़ करेंगे. तो सिंपली 100 grams में 62 लगा है तो 50 में कितना लगेगा, सिंपल है, इज जस्ट द हाफ ऑफ 100 का हाफ हो जाएगा. सो आप उसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं और फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं. सो दिस इज थ्रू फॉर्मूला 62 grams into 50 grams divided by 100 grams. You will get the answer 31 grams. So this way you can find out. Now let's see question number B. Crystals of potassium chloride will be obtained on the cooling the saturated solution. Now इस क्वेश्चन का तो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है 100 grams ऑफ वाटर में आपने ऐड करके जो सोल्यूशन बनाया पोटेशियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन, फिर उसको कूल किया. आफ्टर कूलिंग तो जो भी उसके पार्टिकल्स हैं जो उसमें डिज़ोल्व नहीं हुए थे, सोल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं हुए थे, वाटर में डिज़ोल्व नहीं हुए थे, वो आपको रेसिड्यू के फॉर्म में मिल जाएंगे, क्रिस्टल के फॉर्म में मिल जाएंगे आफ्टर कूलिंग द प्रोडक्ट और सोल्यूशन. तो क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल बी ऑब्टेन ऑन कूलिंग द सैचुरेटेड सोल्यूशन. सो सैचुरेटेड सोल्यूशन को जैसे आप ठंडा करेंगे आफ्टर हीटिंग, पहले तो पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा, हीट करने से उस मिक्सचर में जितने भी पोटेशियम क्लोराइड के पार्टिकल्स हैं वो पूरे ईजिली डिज़ोल्व हो जाएंगे और डिज़ोल्व होने के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपको क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलेगा. लेट्स सी, इसको यहाँ के एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज दिस इज द पोटेशियम नाइट्रेट है 313 Kelvin पर 62 grams हमने यूज़ किया है, 62 grams राइट. तो 62 grams जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया है मतलब ये इतना सोल्यूबल है, इतना ये मिक्स होता है वाटर में राइट. बट इफ़ वी विल यूज़ एट 330 Kelvin, इसके ऊपर हम यूज़ करते हैं, इस टेम्परेचर पे हमने यूज़ किया तो हमारा प्रोडक्ट जो था वो बढ़ गया, उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, 106 लग रहा है. अब 106 ग्राम हमें लग रहा है सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए राइट. सो जब हम ठंडा करेंगे इसको, जब इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर पे वापस आएगा तो ये 106 grams में से -62 grams करेंगे तो जो भी अमाउंट आएगा, जो भी बचा हुआ रेसिड्यू अमाउंट होगा
पोटेशियम नाइट्रेट का, वो क्रिस्टल के फॉर्म में आपको ठंडा करने पे मिल जाएगा. सो दिस इज द वे यू कैन अंडरस्टैंड crystals of potassium chloride will be obtained on the cooling the saturated solution, right? Let's see solubility of each salt at 293 Kelvin. Now they have asked us about solubility निकालनी है 293 Kelvin पर, right? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी 32 है, सोडियम क्लोराइड की 36 है, पोटेशियम क्लोराइड की 35 है, अमोनियम क्लोराइड की 37 है. सो दिस इज द सॉल्युबिलिटी. Let's see D. On increasing the temperature, solubility of salt increases. Yes. Let's see here. इस एग्जाम्पल के थ्रू फिर से समझते हैं. 293 डिग्री केल्विन पर हमने कितना 32 ग्राम्स पोटेशियम का लिया, राइट. जब उसका टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब उससे हीट किया हमने, तो हमें हमारा अमाउंट कितना यूज़ कर रहे हैं, हम 62 ग्राम्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया है. टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ी है, तभी तो हम 62 ग्राम्स यूज़ कर रहे हैं, राइट. सो टेम्परेचर का डायरेक्टली रिलेशन होता है सॉल्युबिलिटी से. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी किसी भी मिक्सचर की सोल्यूशन की बढ़ती है. और जब मिक्सचर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है. सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस, मीन्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी. आपको माइंड में ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. So this is about this question. Let's see question number 4. Explain the following by giving example. A saturated solution. Now we have to define what is saturated solution. Just now we have discussed about the saturated solution. Answer क्या होगा? In a given solvent, when no more solute can dissolve further at a given temperature, it's called saturated solution. जो भी temperature दिया है उस पर जब भी आप सोल्यूट को मिक्स करेंगे किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी सोल्यूशन में, तो वो जब एक कांस्टेंट टाइम के बाद वो जाके मिक्स होना बंद हो जाएगा. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ शुगर इनटू वाटर. आप एक ग्लास वाटर लो, उसमें स्पून ऑफ शुगर ऐड करते जाइए, मिक्स करते जाइए. मिक्स करने के बाद आफ्टर अ स्टेज आपको एक ऐसी स्टेज मिलेगी जहाँ पर शुगर का डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा. एंड दैट स्टेज इज कॉल्ड सैचुरेटेड स्टेज, एंड दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन. सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड. जब किसी भी सोल्यूट का मिक्स होना बंद हो जाता है सॉल्वेंट में, that is called saturated solution. Let's see B. Pure substance. What is pure substance? A pure substance consists of single types of particle. Pure substance में single type of particles होते हैं, like उसमें किसी चीज़ का mixture नहीं होता वो. Let's take example gold and silver. Gold and silver are the metals, are the ornaments. Gold में सिर्फ gold के particles होते हैं and silver में silver के. इसमें किसी और चीज़ का mixture नहीं होता. Now let's see C. Colloids. What is colloid? A colloid is a solution in which the size of a solute particles are bigger than that of true solution. True solution से थोड़ा size बड़ा होता है. These particles cannot be seen with our naked eyes and they are stable. Example, ink and blood. Ink and blood are the example of colloid. Colloid solution. Colloid solution ऐसे solution होते हैं जिसमें true solution के particles से थोड़ा size उनका particles का बड़ा होता है. So this is called colloid. Suspension. What are suspension? It is a heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture होता है in which the solute particles are big enough to settle down. Suspension उसे कहते हैं. Like example, chalk, water and paints. These are the example of suspension. Number 5. Classify each of the following as a homogeneous or heterogeneous mixture. Soda water, wood, air, soil, vinegar, filtered tea. These are the example that we have to classify between homogeneous and हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें सिंगल टाइप का पार्टिकल होते हैं, उसमें किसी और चीज़ का मिक्सचर नहीं होता, दैट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर में सोडा वाटर, विनेगर एंड फिल्टर्ड टी, दीज आर द होमोजीनियस मिक्सचर. लेट्स टेक heterogeneous, wood and soil. Wood and soil is example of heterogeneous mixture. Let's see how. Soil में बहुत सारे nutrients, fertilizers, बहुत सारे different type की चीज़ें होती हैं. So that is a mixture, heterogeneous. Wood is also a heterogeneous mixture. Now air is a homogeneous mixture of different gases. Now you know that air में बहुत सारी चीज़ें mix होती हैं, gases mix होती हैं, but it's still a homogeneous mixture. However, if some dust or other particles are also present, then air becomes heterogeneous mixture. जब air में कुछ dust particles आ जाते हैं, कुछ और चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो heterogeneous में convert हो जाता है. तो इस example के through you can understand what is homogeneous and what is heterogeneous. Question number 6. How would you confirm that a colorless liquid given to you is pure water? So
जब आपको प्योर वाटर दिया है तो हाउ विल यू कंफर्म, आप कंफर्म कैसे करेंगे दैट इट्स अ प्योर वाटर. सो द बेस्ट वे टू फाइंड आउट एनी प्योरिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, सो बाय फाइंडिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन कलरलेस लिक्विड. किसी भी लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करके आप इजीली उसका प्योरिटी निकाल सकते हैं. If the liquid boils at 100 degrees Celsius at atmospheric pressure, then it is pure water. This is because pure substance have fixed melting and boiling point, because pure substance का जो melting and boiling point होता है वो fix होता है. That's why this is a simple way to find out the purity of any liquid. Question number 7. Which of the following materials falls in the category of pure substance? Now we have to tell which is pure, which is impure. Ice, milk, iron, hydrochloric acid, calcium oxide, mercury, bag, wood and air. These are the, we have to find out the pure substance. A pure substance consists of single type of particles. Single type के particles होते हैं. So ऐसा कौन सा है जो single type है, इसमें कोई और mixture नहीं है. Ice is a mixture of different water molecules. बहुत सारे water molecules होते हैं. So it's a single type, right? इसमें किसी और चीज़ का mixture नहीं होता. Milk, ice, iron is a mixture of different types of iron elements. Hydrochloric में hydrochloric acid होता है, calcium oxide and mercury. These are the pure substance. Now let's see question number 8. Identify the solution among the following mixture: soil, seawater, air, coal and soda water. We have to tell the solution, which is solution. So first sea water is a solution जिसमें different type of salts होते हैं, minerals होते हैं, तो it's a solution. सोडा वाटर इज ऑल्सो सोल्यूशन, टाइप का सोल्यूशन होता है, वाटर में सोडा मिक्स होता है, सो दैट इज सोडा वाटर. एंड एयर इज ऑल्सो अ सोल्यूशन. सो दिस इज अबाउट सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडॉल इफेक्ट? ऑप्शंस: सॉल्ट सोल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, स्टार्च सोल्यूशन. सो द आंसर इज मिल्क एंड स्टार्च सोल्यूशन दैट यू हैव सीन इन योर बुक्स. सो मिल्क एंड स्टार्च सोल्यूशन इज a solution which show Tyndall effect. Question number 10. Classify the following into elements, compound and mixture. Now we have to classify these many into elements, compound and mixture. Now what is element? The elements are regarded as the building block of the universe. So sodium, silver, tin, silicon, these are the elements. Now we know that 118 elements are there. So out of them, sodium, silver, tin and silicon are the elements. Now what are compounds? It is a pure substance made up of 2 or more elements chemically combined in a fixed proportion by the mass. जिसमें proportion mass का जो proportion होता है fixed होता है, that is compound. So answer: calcium carbonate, methane, carbon dioxide are the compounds. Now let's see mixture. It is a substance containing 2 or more substance. Mixture क्या होता है? किसी भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करते हैं तो दैट विल बिकम अ मिक्सचर. एलिमेंट और कंपाउंड यू कैन मिक्स. सो आंसर: सॉइल, sugar, coal, air, soap and blood. These all are mixture. Question number 11. Which of the following are chemical changes? Now we have to tell out of these which are the chemical changes. Now chemical changes are the changes which are irreversible. इसमें new products form होते हैं and इसका chemical composition will totally change हो जाता है. So this is called chemical changes. A. growth of a plant, sapling से tree में conversion होना, and ये irreversible है, ये change नहीं हो सकता. So this is also a chemical change. Rusting of iron. आयरन में जब भी वाटर पार्टिकल्स और ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो रस्ट फॉर्म होता है एंड दैट्स इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल है वो. तो एंड इट इज़ ऑल्सो इरिवर्सिबल, ये रिवर्स नहीं हो सकता. नाउ लेट्स सी कुकिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल प्रोसेस. न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है. डाइजेशन इट्स ऑल्सो अ केमिकल चेंजेस. डाइजेशन, जब फूड का डाइजेशन होता है तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होता है. Now let's see NCERT textbook question on page number 24. You will get this question. Question number 1. Classify the following as a chemical or physical changes. Options: cutting of trees, melting of butter in a pan, rusting of almirah, boiling of water to form steam, passing of electric current through water and the water breaking down into hydrogen and oxygen, dissolving common salt in water, making a fruit salad with raw fruits, burning of paper and wood. We have to identify which one is the physical and which are the chemical. So melting of butter in a pan
इट्स अ फिजिकल चेंजेस बिकॉज इसमें कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता और इसका केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल चेंज नहीं होता एंड दिस इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल प्रोसेस. सो दैट्स वाई मेल्टिंग ऑफ बटर इज अ फिजिकल चेंज. Since there is no change in the chemical composition, butter, only the physical state changes from solid to liquid. So this is physical change. Boiling of water to form steam is a physical change because during this change, only change of state occurs from liquid water to steam without any change in its chemical composition. So chemical composition change नहीं होता. That's why it is also a physical change. Dissolution of common salt in water is a physical change since salt can be easily recovered by the evaporating water. आप easily उसको recovered कर सकते हैं evaporation के through. So it is also a physical change. Making a fruit salad with raw fruit is a physical change. There is no change in the chemical properties of the fruits, but only the physical appearance has changed. It is also a physical change. So this way you can understand. Chemical changes. Cutting of tree is a chemical change since all chemical reactions stop. इसमें सारी रिएक्शन स्टॉप हो जाती हैं एंड वी कैन नॉट गेट बैक द ओरिजिनल ट्री. और आफ्टर कटिंग हम ओरिजिनल ट्री